Good morning, student. Now, today I am going to explain you the third chapter, Swasthya Vritam Samachar, Sanskrit lit- literature uh, for grade 10th standard. Now, we can understand what is the chapter is. It is given Swasthya Vritam Samachar. So, let's start now the first introduction that is given here. Great poet Kalidas has written in the 5th century of Kumar Sambhav that body is the first means of accomplishing duty. This means even if a man has lots of things with him, but if he has no healthy physique, all these things are useless. Now here, the Kalidas has given the information ki what is the importance of the our physical ability related to the health. Suppose if you are not healthy but you have all the luxurious things but you cannot enjoy it. Why? Because your health is not good. So first you have to understand about your health, the condition. So he has given this in a Kumar Sambhavam, and now the next he emphasized to understand about the day-to-day routine and maintain the health condition. The age-old lords of Ayurveda and modern well-known scholars of medicine science now here that is a given that ki, Ayurvedas whatever given us medicines it's recommended by the medical science and it's ratified by the medical science. जो भी आयुर्वेद ने चीज़ें हमें दी हैं वो मेडिकल साइंस ने क्या किया है उसको प्रूव किया है कि हाँ मेडिकली इट इज़ अ करेक्ट, scientific it is a correct. So now in this chapter we understood कि what is the importance of the day to day routine. अगर हम अपने रूटीन को डे टू डे फॉलो करते हैं तो जो हमारे नेचुरल क्लॉक होता है हमारे बॉडी का वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए. नाउ हियर that is a given also that ki after day to day routine what is the given in the day to day routine. It is not including only the eating habit, sleeping habit and walking, just like other more thing that is towards the giving the respect to the elders and hard working of for acquiring knowledge, sticking to truth. It is related to the morality also कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ने के लिए हमें कितना एफर्ट दिखाना है, कैसे हम सच्चाई को फॉलो करें, कैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमारे डे टू डे रूटीन का पार्ट होना चाहिए जिससे कि ह्यूमन का जो लाइफ होता है वो केवल हेल्दी ही नहीं इवन मोरली भी इन्हेंस होना चाहिए. So let's try to understand the chapter now. Here that is the first, it is a given. I think you can see properly. बाल उत्तिष्ठ शस्यातः स्वस्थ वृत्तम समाचर स्मर जगद विद्या तारम ततः शुद्धम जलम पीब. That is the first, it is a given. So what is the instruction is given. Now let's see. We first understood that ki these part is a given to instruction by the father or son. एक फादर ने अपने सन को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया कि उसको हेल्दी रहने के लिए. नाउ द फर्स्ट से दैट ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, practice well the behavior conducive to health, remember the creator of the world, then drink pure water. So in these two lines the father given the instructions to the son that ओ मेरे प्यारे बेटे उठो, बेड से उतरो और वो सारे बिहेवियर करो जो तुम्हारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है. इस संसार को बनाने वाले उस भगवान को
याद करो और इसके बाद शुद्ध जल, प्योर वाटर ड्रिंक करो. Now then after the second is it is a given shatam padani nishkramya शौचार्थ गच्छ सत्वरम फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाम ममाचर. That is given in this lines कि we after uh, it means after the getting up you can walk distance of 100 steps, and after you do your daily routine, and then after wash your hand properly, and then take a exercise. तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि पहले आपको जो फ्रेशनेस के लिए आपको कम से कम 100 जो स्टेप्स होते हैं वो चलने चाहिए. इसके बाद अपने हाथों को सोप से बहुत अच्छे से साफ करिए, एंड देन व्यायाम ममाचार मतलब कि इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट दैट इज गिवन तेलम मर्दय काले त्वम ततः स्नानम समाचर यथाविधि जलेनैव वस्त्रम स्वयं प्रधावय. It means now after the exercise you have massage body with oil, then take bath, wash your own garment in the right manner. So here the third is a given that कि जैसे आप एक्सरसाइज कर लेते हो इसके बाद आपको पूरे अपने बॉडी पे ऑयलिंग करनी चाहिए, ऑयल से मसाज करना चाहिए. इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, बात कर लेना चाहिए. देन आफ्टर जो भी आपने वस्त्र पहने थे वस्त्रम स्वयं प्रधावय, वस्त्र को बहुत ही अच्छे से साफ कर देना है आपको. नाउ द नेक्स्ट पूर्वाभिमुखमासीन कुरु संध्या विधि तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातराशम अशान च. Now in these two lines that is given कि after the taking bath perform the morning ritual sitting face the east, कि आपको सुबह ईस्ट साइड के डायरेक्शन में बैठ जाना चाहिए और पूजा करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, उस गॉड को याद करना चाहिए. ऑलवेज गो डाउन टू द पेरेंट्स एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील. अपने पेरेंट्स उसके बाद अपने पेरेंट्स का पैर छूने का और फिर इसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए. सो दिस इज द रूटीन, and if you follow this routine you can do perfectly your work. Now the next the fifth line it is given पाठशाला समम मित्रे गच्छ पाठम तथा पठ एव समादिशत पुत्रम तातः पुत्रहिते रतः. So in these two lines that is a given that go to school with your friends and learn lessons. जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया अब आपको स्कूल जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आप स्कूल जाइए. The father who has engrossed in the welfare of his son instructed him in this way. कि जो पिता अपने पुत्रों की भलाई के बारे में सोचते हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस दिया करते हैं. Now the next त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नाम हरे सदा. So in these two lines again father said to the son that give up the associations with the wicked, prefer the company of good people, remember the name of Hari throughout the day and night, secure religious marriage. अब यहाँ पे फादर अपने बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी गलत लोग हैं उनके कंपनी को उनके साथ को छोड़ दो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा करो और जो भगवान का नाम है उसे दिनों रात जपा करो या चैंटिंग किया करो, ऐसा जिससे कि जो तुम्हारा धार्मिक जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रह सके.
So the next it is a कुरु पुण्य महोरात्रम ईश्वर नाम हरे सदा प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित. So sorry, that is a sixth number. I have now the seventh is a प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित शत्रोरपि गुणाः ग्राहा दोषास्त्याज्या गुरोरपि. So in this, father said to the son that answer should be given after thinking thoroughly well. Never should we speak suddenly or toughnessly. Good qualities should be accepted even from the enemy. Bad qualities even of the teachers should be given up. That is a say. फादर यहाँ क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ का तुम्हें आंसर देना हो तो तुम्हें थोड़ा उस पर सोचना चाहिए, अचानक से आंसर नहीं दे देने का. और अगर मान लीजिए कोई अच्छी क्वालिटी तुम्हारे एनिमी के अंदर भी हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. और अगर तुम्हारे भले ही वो कितने भी अच्छे लोग हों, तुम्हारे टीचर ही क्यों ना हो, अगर उनके अंदर कोई बुराई है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इट इज़ अ ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुख मनागतम कायिकम सुखमादेयम विधेयम जन सेवनम. Now internal supreme being should be meditated upon. Give up sorrow that has not come. Accept the physical pleasure. Service should be rendered to people. अब यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए. मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जो हमारा इनर सोल होता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो मजबूत होता है. और हमें कभी भी दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि दुख आएगा. दुख का तो आना नेचर है, वो आएगा तभी तो सुख आएगा, तभी हम सुख और दुख को समझ सकते हैं. जो भी फिजिकल एंजॉयमेंट है उसको एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो खेलने से हो, घूमने से हो, वॉकिंग करने से हो या किसी से भी हो. और हमेशा विधेयम जन सेवनम, मतलब कि जो जन पीपल होते हैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. सो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.